जलपाईगुड़ी जिले के राजगंज थाना अंतर्गत बेलाकोबा आउटपोस्ट पुलिस ने मुर्गी भीटा क्षेत्र में छापेमारी कर 25 लीटर चुलाई शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से शराब बनाने में उपयोग होने वाले बर्तन, गुड़, बखार और तंबाकू की डंठल भी जब्त की। यह अवैध कारोबार नलन राय 76 वर्ष के घर से पकड़ा गया, जिसने बताया कि इसका संचालन उसका बेटा सुजय राय 35 वर्ष का है करता है। मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भारी बारिश में दीवार गिरी, सिलीगुड़ी में 2 बच्चों की मौत। भारी बारिश के कारण दीवार गिरने से 2 मासूमों की मौत हो गई। यह घटना मंगलवार रात सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास के सटे पाखालू पाड़ा इलाके की है। रात करीब 10:30 बजे तेज बारिश के दौरान भोर का आगर थाना अंतर्गत पाखालू पाड़ा निवासी परिमल महंत के घर की दीवार का एक हिस्सा ढह गया। गिरी हुई दीवार के मलबे में दबकर उसकी 3 साल की बेटी मधुमिता महंत और 1.5 साल का बेटा देवायन महंत की मौत हो गई। दोनों के शवों को उत्तरबंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। ঘরে জল ঢুকলো, আমার শাশুড়ি ডাকলো আমার বরকে, আমার বর উঠলো, উঠে বললো লাইটটা নিয়ে আয়, আমার ঘরে জল ঢুকছে, তুই আমি লাইটটা ধর, আমি জলগুলা ছেঁকি। ও জল ছেঁকতে ও লাইট নিয়ে গেল, আমার শাশুড়ি জল ছেঁকতেছে। তা আমি বললাম একটু আমিও যাই দেখি। আমি উঠলাম, আমার বাচ্চাটা আমার বুকে ছিল, আমি বাস্তে করে ওকে শুয়ায় রেখে আমি উঠে আসলাম। আমি ঘরের থেকে বাইরেও হই নাই, তাতে ওয়ালটা ভাঙে আমার ছেলের বুকে এসে পড়লো, পা গুলাই দিকে আসে। আমার ছেলেটা না চিল্লাইতে পারলো না কিছু করতে পারলো, কিচ্ছু পারলো না আমার ছেলেটা। আমার ছেলেটা কিচ্ছু একটা মা ডাক্তারও দিতে পারলো না আমাকে। এমনভাবে আমার ছেলেটার গেল জীবনটা। আজকে ওই ন্যাংরার জন্য আমার ছেলের মেয়ের জীবনটা চলে গেল। ও বাবা, আমার 3টা বাচ্চা, একটা বাচ্চা আমার কুচবিহারে গেছে, 1 মাস হয়ে গেল। ওই বাচ্চাটা থাকলে আমি ওই বাচ্চাটাকেও হারাই ফেলতাম। আমার 1 মেয়ে 1 ছেলেকে নিয়ে নিল, আমি কি নিয়ে বাঁচবো? ওনাকে বলুন ন্যাংরাকে আমার বাচ্চাকে ফিরত আইনে দেও, কোথা থেকে আইন। ওকে আমরা দিন থেকে বলে আমার শাশুড়ি সকাল বিকাল যে বলে কাকু তোমার ঘরে যে ভাঙিয়ে গেছে, আমাকে এটা ঠিক করে দাও, আমাদের কাছে পয়সা নাই, তোমার কাছে তো টাকা আছে, তুমি ঠিক করো। কাকু ঠিক করে না, ও মাল খাইয়ে বাড়িতে চিল্লায়, লোককে সুদে টাকা দেয়, সুদের টাকা না দিলে মুখের ভাষা দিয়ে গালাগালি দেয়। কিন্তু ও তো ওয়ালটা ঠিক করলো না। আমি বাড়ি থেকে সব শুনি, আমার ছেলে মেয়ের জীবনটা গেল। ওরা তো নিষ্পাপ শিশু, ওদের তো শুধু শুরু হবে জীবনটা। ওর জন্য আমার জীবনটা আমার ছেলে মেয়ের চলে গেল। মা মা তোমার খালি লাশ দেখা ছিল মোর চাওয়াগুলোর সাথে। মা
ওই কালী বাড়ি না যাও কাকার দোকানে তাহলে মশলাওয়ালার দেখা না পান মা আমি তাহলে আর মশলাওয়ালার দেখা না পান খালি শুয়েছি পুরা জোরে বৃষ্টি হচ্ছে এই ঘরে আসলাম জল ছেঁকার জন্য এই ঘরে পুরা জল জমছে আমি আর আমার বউ মিলে দুজনে উঠছি ঘর থেকে বেরোবার সাথে সাথে ওই ঘরে একদম দরম করে পড়ে গেল পুরা ওয়াল ভাঙে পড়ে গেল আমার বাচ্চা একটা আমি দেখতে পারলাম না দুইটা বাচ্চাই আমার পরে ডালার ভিতরে ঢুকে আছে কটার সময় ঘটনা হয়েছে এটা? 8টা সাড়ে 8টার দিকে। 9টা সাড়ে 9টা এরকম হবে। ওখানে কি আপনিও ঘুমাইছিলেন নাকি বাচ্চা দুটি? আমরাও ঘুমাইছিলাম, বাচ্চাগুলো ঘুমাইছে। তো জোরে বৃষ্টি হওয়ার কারণে মা ডাকলো বলে ঘরে বৃষ্টি ঢুকছে, তোদের ঘরে যদি বৃষ্টি ঢুকে একটু চারপাশে দেখ। ও দেখতে বেরোচ্ছি তখনই অ্যাক্সিডেন্টটা হয়ে গেছে, ওদের ওয়ালটা গোটাই ভাঙে পড়ে গেছে বাচ্চা দুটার উপর। খালি পা দুটা দেখছে, শরীর গুলো একটাও দেখা যায় না। মা ছেলে মেয়ে আপনার? মেয়েটা বড়, ছেলেটা ছোট। মেয়েটার বয়স কত আর ছেলেটা? মেয়েটা 3 বছর, ছেলেটা 1.5 বছর। খালি কথা বলা শুরু করলো। বাবা কয় ছেলে মেয়ে আপনার? বড় মেয়ে আছে বাইরে আছে, আর এখানে 2টা ছেলে মেয়ে, 3 ছেলে মেয়ে টোটাল, 2টা মেয়ে 1টা ছেলে। বাবা মধ্যে ওদের 4 জন ছিল, 4 জনের মধ্যে মা বাবা ছিল আর 2টা বাচ্চা ছিল, একটার বয়স 3 আর একটার বয়স 2। দুজনেই কি কারণে হয়েছে? এটা ওয়াল যেটা ছিল পাশের বাড়ির যেটা ওয়াল, ওই ওয়ালটা মানে বৃষ্টির কারণে ধসে গেছে। আচ্ছা, ধসে পড়ে পাশের বাড়িতে পড়েছিল। একটু পাশে বাড়ি। আর এমা কি ওই সময় কি ঘুমাইছিল ওই সবাই? সময় বাচ্চাগুলো শুয়েছিল। কয়জন ছিল ঘরে? আর 2টা বাচ্চা ছিল, 2 ভাই বোনই ছিল। আর বাবা মা? মা ছিল, বাবারা মনে কাজে গেছে। 2 জনই ছিল। বাচ্চাদের বয়স কত? একটা মেয়েটার বয়স 3 বছর আর ছেলেটার বয়স 1.5 বছর। কি বলবেন, এত একটা মর্মান্তিক, খুব দুঃখজনক। আমি ছিলাম না মোটামুটি কিছুক্ষণ আগে, বাবার বাড়ি গেছিলাম, কিছুক্ষণ আগে ঢুকলাম। খালি বাড়িতেও ড্রেসটা এখনো খুলিনি, খালি ঢুকলাম, দেখি ফোন করলো, তারা ওরা করে আসলাম, দেখি খুব খারাপ লাগছে। মানে এত দুঃখজনক, এটা তো বলা যায় না। কারণ এক মাটার 2টা বাচ্চাই এখন ফোন কিছু করে নিয়ে গেছে। এই বাচ্চা ছিল, দুটাই বাচ্চা ছিল। এই জায়গাটার নাম কি আছে? আলু পাতা। কি দেখলেন এসে এখানে? আমি এসে দেখলাম একটা মর্মান্তিক ঘটনা। আমার বাড়ি পাখালুপাড়া, আমার বাড়ির পাশেই ঘটনা, যেটা দেখলাম রাত আনুমানিক 9:30 থেকে 10টার মধ্যেই বাড়ির পাশে যে প্রাচীর দেওয়ার ছিল, প্রাচীরের পাশে আরেকটা বাড়ি ছিল, সেই বাড়ির ওই ওয়াল মানে প্রাচীর ভেঙে পড়ে ঘরের উপর ভেঙে পড়ে এবং ঘরের 2টি বাচ্চা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল, তাদের উপর পড়ে যাওয়ার পরে মর্মান্তিকভাবে খুবই দুঃখজনক ঘটনা যে বাচ্চা দুটোই মারা যায়। বয়স কত ছিল ওদের? বয়স আনুমানিক একজনের 5 বছর হবে আর একজনের 7 বছর হবে। পরিবারের লোকজন অভিযোগ করছে যে প্রাচীরটি দেওয়া হয়েছিল, সেই প্রাচীরটি ঠিক মতো দেওয়া হয়নি। হ্যাঁ, কি এখন বলবেন? দেখে সেটাই মনে হচ্ছে, কিন্তু যখন দিয়েছিল তখন তো সেটা অতটা আমরা বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন দেখে মনে হচ্ছে যে সত্যি হয়তো প্রাচীরের ডিপটা কম ছিল, কারণ যে বাড়িতে বাচ্চা দুটো মারা যায় সেটা একটু নিচু জায়গা, আর যে প্রাচীরটা ছিল ওনার বাড়িটা একটু উঁচু জায়গায়, কাজে ডিপটা হয়তো কম দেওয়াতে বা রড দেয়নি, সেই জন্য হয়তো ভেঙে পড়েছে। আচ্ছা, এই এলাকায় তো এরকম আরো অনেক প্রাচীর রয়েছে। হয়তো প্রাচীর ঠিকই আছে, ঠিকই, এখন সেটা কিভাবে তৈরি করেছে সেটা তো আমাদের জানা নেই। কারণ কে কীভাবে তৈরি করেছে প্রাচীর সেটা তো আমরা তদন্ত করে দেখতে পারি না বা সম্ভব নয়। কাজে প্রাচীর এরকম আছে এবং বাড়ির আশেপাশে আরও এরকম নিচু বা উঁচু জায়গার মধ্যে আছে। এখন সেটা কিভাবে আছে সেটা আশা করি প্রশাসনিক যে আছে তারা তদন্ত করে দেখবেন, এবং আমাদের মাননীয় প্রধান বা উপপ্রধান মশাই আছেন, তারা একটু দেখলে ভালো হয়। সেই সময় পরিবারের মধ্যে কে কে ছিল ঘরে? বাড়িতে বাবা মা ছিল, কিন্তু বাড়ির পাশে ওদের রাস্তা ছিল, রাস্তায় একটু জল জমেছে, তো গার্জিয়ান বলছে একটু রাস্তায় জল জমেছে, তো জলটা একটু কেটে দিলে বাইরে থেকে বের হয়ে যাবে। তো ওরা উঠেছে জলটা কেটে দেওয়ার জন্য, ঠিক সেই মুহূর্তেই ওয়ালটা ভেঙে পড়ে। হয়তো ওরা বাড়িতে থাকলে আরও হয়তো বড় ধরনের অঘটন ঘটতে পারত। কি নাম আছে আপনার? আমার নাম ফণি সরকার। এই জায়গাটার নাম? এই জায়গাটার নাম হচ্ছে পাখালুপাড়া। क्यों ढूंगा नहीं थी वो बाइक? जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे चलते समय एक महिला की बाइक की टक्कर से मौत हो गई। यह हादसा बनरहाट ब्लॉक के रेड बैग चाय बागान के पास 17 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। पुलिस सूत्रों के अनुसार मृतका का नाम टेरेसा मुंडा 45 वर्ष की है, जो रेड बैग चाय बागान के गरजू लाइन की रहने वाली थी।
जानकारी के मुताबिक टेरेसा मुंडा राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे से होकर डायना जंगल में घास काटने जा रही थी। उसी समय बनरहाट से लुकसान की ओर जा रही एक बाइक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में बनरहाट थाना पुलिस ने उन्हें बचाकर बनरहाट अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने बाइक को बरामद कर लिया है, लेकिन बाइक मालिक का कोई सुराग नहीं मिला है। मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्या हुआ था, मतलब कोई जान गया है? हाँ, एक तो यहाँ का टेरेसा मुंडा जो बोलता है महिला का, उसका जान गया। क्या करने गई थी वो? घास काटने के लिए डेली आता है गायों के लिए, तो घास काटने के लिए आ रहा था। वो बनार तरफ से एक तो बाइक आया, नागरघाटा तरफ जा रहा था, बाइक उसको डायरेक्ट मार के चला गया। तो बाइक वाला को पकड़ा? नहीं, बाइक वाला तो यहाँ पर देखने वाला भी नहीं था, वो भाग गया। और यहाँ था? अब चप्पल देख के तो लग रहा है बच्चा भी था जैसे, लेकिन यहाँ नहीं मिला ना? यहाँ पर नहीं मिला, वो पहले ही भाग गया। जो डेथ हुआ उसका नाम क्या था? टेरेसा मुंडा। उम्र कितना था? उम्र यही 50-55। कितना बजे का घटना है? 55। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं उसका जो, अब वो तो गाड़ी तो मार के चला गया, उसका एक तो बेटा है, एक तो बेटी है, और लोग को जो सरकार तरफ से जो एक तो मुआवजा मिलता है वो सब मिल जाए तो अच्छा बात है। आपका नाम? पीकू मुरा। आप कहाँ के? मैं रेड बैंक का बस। और वो जो टेर थी वो रेड बैंक गर्जू लाइन का। दूसरे राज्य में काम करने गई महिला प्रवासी श्रमिक की मौत। धूपगुड़ी खट्टीमारी महकमा के झाड़ आलता 2 नंबर ग्राम पंचायत के खट्टीमारी बाजार की निवासी ममता हरिजन 32 वर्षीय जिनकी उम्र थी, तमिलनाडु में काम करने गई थी, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। 3 बच्चों की मां ममता 5 महीने पहले अपने पति जयंता रविदास के साथ दूसरे राज्य गई थी। जयंता रविदास लंबे समय से तमिलनाडु की एक कपड़ा कंपनी में श्रमिक के रूप में काम कर रहे थे। परिवार के अनुसार पति की अकेली आय से घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से अतिरिक्त कमाई की उम्मीद और बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ममता भी पति के साथ तमिलनाडु गई और उसी कपड़ा कंपनी में शुरू कर दिया काम करना। वहीं के काम करने के दौरान करंट लगने से उनकी मौत हो गई। अब तक मृतका का शव गांव नहीं पहुंचा है, लेकिन मौत की खबर मिलते ही पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिवार गहरे सदमे में है। छोटे छोटे बच्चे भी मां की मौत की खबर सुनकर फूट फूट कर रो पड़े। मेरा नाम है गोपाल हरिजन। क्या लगता है जो अभी जो गुजर गए? मेरा भैया है ना, हाँ। मेरा बेटी। अच्छा,
कैसे ये हादसा हुआ, कुछ क्या मालूम आप लोगों को? क्या था कहाँ काम कर रहा था? तमिलनाडु तमिलनाडु में। क्या क्या चीज़ का काम था वहाँ पे? कंपनी में? क्या कंपनी कितना दिन हुआ? 4 माह से 4 मंथ हो गया। और कैसे मालूम पड़ा आप लोगों को? कल रात 10:30 फोन आया, हाँ। यहाँ आया। बोला था इलेक्ट्रिक शॉक हुआ था। कंपनी की तरफ से कुछ बोला गया? आप लोगों के रिलेटिव और परिवार से कितना आदमी बाहर काम करता था? अभी भी उधर ये जो हो रहा है, बार बार ये हादसा हो रहा है कि बाहर काम करने के सिलसिले में जाते हैं आदमी लोग और ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलता है। क्या क्या बोलेंगे, ये हम लोग को यहाँ पे काम नहीं है? क्या बोलूं, बाद में तो यहाँ पे हो रहा है, पूरा हो रहा है। मैं देख रहा हूँ जितना परिवार में जितना पैसा लगता है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनंत राम है। और जो जिसके साथ ये हादसा हुआ था, क्या लगता है आपको? वो हमारा भतीजी लगता है। कैसे ये हुआ और क्या पता चला आप लोगों को? कैसे हुआ मतलब जो वो लोग बहुत गरीब था, मतलब जो बाहर कमाने गया, तो बाहर कमाने गया मतलब जो लोग का उनका 3 बच्चा है, 1 लड़की है, 2 लड़का है, छोटा है, तो कमाने गया। ऐसे कमाते करीब 8-9 महीने हो गया जाने को, तो उसका तो घर में चलता ही नहीं है, नहीं जाने से क्या करेगा। आप फिर भी गरीब को यहाँ पर कुछ है नहीं, गरीबी होता है यहाँ पर। हम लोग के बंगाल में गरीबी है, बंगाल में जो गरीब है वो गरीबी है। तो तमिलनाडु पे जो काम करता था कपड़ा कंपनी में, जैसे सुनाई दे जा रहा है, तो वहाँ पे कितना पगार मिलता था? अच्छा खासा मिलता था? वहाँ से अच्छा खासा पगार मिलता था? हाँ, ऐसे वहाँ पर कमाने गया तो पैसा ऐसे स्कूल पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए पैसा को भेजते थे, बच्चा लोग स्कूल पढ़ते थे। तो बाकी अभी तो वो एक सीजन वहाँ पर माने हम लोग का फैमिली तो पूरी हम लोग तो बहुत दुखित हो गया, जो हम लोग का टूट गया है। मतलब ये वो माने ऐसे लड़की बहुत अच्छा था, बाकी क्या करेगा गरीब के चलते, उसका कुछ है नहीं। शादी हो गया था? शादी कितने साल होता? शादी करीब उसका शादी के उम्र हो गया करीब 17-18 साल हो गया, 17-18 साल हो गया। 3 बच्चा था, 2 लड़का, छोटा था अभी लड़की। 3 बच्चे को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए देखिए, वो जब गरीब है तो उसका देखना तो हम लोग का थोड़ा बहुत ज़रूरी है। हम लोग का तो ऐसे ही चलता है। बाकी देखिए जो हम लोग के यहाँ पर कोई उन्नयन नहीं है, इसीलिए बाहर कमाने गया था। हमारा क्या है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसीलिए गया था, हाँ, और कुछ नहीं। में आदिवासियों की जमीन छीनकर बांग्लादेशियों के नाम पर पट्टा दिया जा रहा है। राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से से फूटा डुअर्स। जिंदा लोगों को मृत दिखाकर भविष्य निधि का पैसा गायब करने से लेकर बांग्लादेशियों को जमीन का पट्टा देने तक ऐसे दोहरे शोषण के खिलाफ डुअर्स का आदिवासी समाज राज्य सरकार पर निशाना साध रहा है। न्याय की उम्मीद में जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा। बुधवार को अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की नागरा काटा समिति के सचिव विकास बराला ने यह गंभीर आरोप लगाए। इस दिन धरणीपुर चाय बागान के मजदूरों को साथ लेकर जलपाईगुड़ी जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर उचित अधिकार की मांग की। सचिव विकास बारला ने आक्रोश जताते हुए कहा कि एक ही परिवार के 5-6 लोगों के नाम पर जमीन का पट्टा दिया गया है।
इससे भी बड़ी घटना हमारे सामने आई है। डुअर्स के भूमिपुत्र आदिवासियों की जमीन बांग्लादेशियों और नेपाल से आए लोगों को दी जा रही है। इसके अलावा नकली प्रमाण पत्र बनाकर जिंदा चाय बागान मजदूरों को मृत दिखाकर उनका भविष्य निधि का पैसा निकाला जा रहा है। इस मामले में आज हमने जिलाधिकारी और क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। यदि राज्य सरकार की ओर से जल्द ही इन मामलों में कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम राज्य के विपक्ष के नेता से बात करके दिल्ली में धरना देंगे। ये 6 से 7 लोगों का 7 से 8 लोगों का भी नाम मेंशन किया हुआ है। और जहाँ पर हम लोग जब पीएम से बात करने के लिए आए थे, नोटिस दिए थे, उनको इन्फॉर्मेशन दिए थे, वहाँ पर उन्होंने हम लोग को बताया था कि एक परिवार में कम से कम 1 से 2 लोगों का ही मिल सकता है। लेकिन हम लोग वहाँ पर देखिए, एक परिवार में अगर 6 जन रहे तो 6 जन का नाम में पट्टा की इशू कैसे हुआ। और जाहिर सी बात है, और हम लोग को जो रिकॉर्ड मिला है वहाँ पर हम लोग को देखने के मिला है कि जो पट्टा इशू हुआ है, जो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं, नेपाल से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं, उन लोगों के नाम में पट्टा इशू हुआ है। और जो आदिवासी जो वहाँ पर रह रहे हैं काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से, शुरू से, उनके वहाँ पर उनको पट्टा नहीं देके उन लोगों को कैसे दे दिया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। इसको लेकर ही आज हम लोग डीएम को यहाँ पर डेपुटेशन देने आए हैं। और जो भी हमारा जो सबूत है, हमारे पास जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर उनको हम लोग बताएंगे कि ऐसा घोटाला हुआ है बोल के, और उसके खिलाफ में जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। और कोई इशू है? बिल्कुल, और एक इशू है कि हमारे धरणीपुर चाय बागान में तकरीबन 184 लोगों का बिना अनुमति के उनका पीएफ का पैसा और डीएलआई का पैसा उनका मृत घोषित करके उनका डेथ सर्टिफिकेट बना के पैसा निकाल लिया गया है। उस विषय में भी हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद में हमारा जो डिमांड है उसको सौंपेंगे। कौन किया है? अभी तक की तो ये किसने किया है वो हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि अभी तक हम लोग को इतना ही रिकॉर्ड मिला है कि इन लोगों का पैसा निकाला गया है। ये जानकारी हमको मिला है और वो हम लोग के पास में सबूत है। तो आज हम लोग पीएफ ऑफिस भी जाएंगे। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से हम लोग रिकॉर्ड निकालेंगे कि किनके अकाउंट में गया है, कौन व्यक्ति है जो उनके पीएफ क्लेम किया है बोलते, उसका हम लोग डिटेल्स निकालेंगे। यहाँ पे आया हुआ है कोई ऐसा कोई व्यक्ति आया हुआ है आज पीएम ऑफिस? बिल्कुल ऐसा व्यक्ति आया हुआ है। कितना अमाउंट? अच्छा, आज बंगाल सरकार ने, प्रशासन ने अगर कोई ठोस सबूत नहीं उठाया तो आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो है, हम लोग आज यहाँ पर आए हैं अगर इस विषय को लेकर, जमीन के जो पट्टा का मुद्दा है और पीएफ का इशू को लेकर, अगर बंगाल सरकार जो है अगर ठोस कदम नहीं उठाता है तो हमारे पास में जो सबूत है, उस सबूत के आधार पर हम लोग सबसे पहले हमारे जो पश्चिम बंगाल के जो विपक्ष के नेता हैं उनको सबूत भी सौंपेंगे। साथ ही साथ हम लोग दिल्ली भी रुक करेंगे। अगले महीना हम लोग दिल्ली भी निकलेंगे सबूत के साथ। वहाँ पर जो होम मिनिस्ट्री है वहाँ पर हम लोग, उसके बाद में नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब है, वहाँ पर भी हम लोग जो सबूत है उनको वहाँ पर जमा करेंगे और उनसे हम लोग आशा करेंगे कि हम लोग के साथ में जो अन्याय हुआ वो न्याय होगा। आपको लगता है कि आप लोग को जमीन, आदिवासी का जमीन छीना जा रहा है? बिल्कुल, इसमें लगता है वाली बात तो नहीं बोल सकती, क्योंकि ये 100% सही है कि हमारे जमीन को हमसे ही छीना जा रहा है, क्योंकि हमारे जमीन को दूसरे लोगों को दे दिया गया है। ये तो सोचने वाली बात है। जिस जमीन में हम लोग बरसों से जमीन को उपजाऊ लग बनाए, वहाँ के आदिवासी लोग अपना खून पसीना से जमीन को उपजाऊ लग बनाए और उस जमीन से उनको ही बेदखल कर दिया गया है। उसके बाद में उनके जमीन को, उनका जो पट्टा इशू हुआ है, जमीन का जो अधिकार दिया गया है उसको नहीं देके दूसरे लोगों को दे दिया गया है। तो कहीं ना कहीं तो ये हमारे साथ में अन्याय हुआ है। ठीक है, यहाँ हालात तो हमें नहीं जानेला, लेकिन हमें जब पीएफ नंबर के केवाईसी कर लेकिन जाए रही ऑफिस में, तभी पता चल कि हमें जहाँ डेट हो जाए तो हमें कहता हूँ आप चीज़ें ध्यान हुई तो, लेकिन तो डेट दिखा लग, तो ये कारण से हमें ये आंदोलन के कार्यकर्ता होती। कौन ले गया पैसा के ले गया क्योंकि तो हमें पता नहीं थे, तो सेकरे हमें खोज विचार करो थी लेकिन क्या कर दो, लेकिन हमें खोजो कुछ ले सके क्या चाहती हमें क्या चाहो पैसा इतना खून पसीना बहाए के जे हमें कमाई के हमें करो है पिए पैसा लागिन, तो आशा करके बैठे हिला कि हमें पिए पैसा है जे कहियो दिन बुढ़ापा हो जब जे वो पैसा हमें के लगिन काम में सहारा बन के रही के तो एखाने वो पैसा के शोभा निकला कि खाई देवाइन होने से हमें क्या करब, कहाँ जाब, कौन जगह खोजिक जाब से, लेकिन ओहे लेके हमें ना ही। ऐसा कितना आदमी होगा जो जिंदा है फिर भी मरा दिखा दिया? कितना आदमी है वो तो हमें नहीं जाना थी, कितना आदमी जिंदा है और कितना आदमी तो के मरक दिखा दिया। हाँ, तो मोरल दिखाई दे है से लगन मैं जाना था।
सिलीगुड़ी में रात भर हुई तेज बारिश के कारण उत्तर बंगाल की पहाड़ी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते फूलबाड़ी महानंदा बैराज क्षेत्र में जलस्तर का भयावह दृश्य देखा जा रहा है। महानंदा नदी का पानी तेज रफ्तार से बह रहा है। हालांकि बैराज प्राधिकरण ने पहले ही कई गेट खोल दिए हैं और नदी में मत्स्य पालन करने वालों को मछली पकड़ने से मना किया गया है। लेकिन जिस तरह से कल रात से लगातार बारिश हो रही है, उससे बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। आग्नेयास्त्र के साथ एक कुख्यात दुर्दांत अपराधी को एनजेपी थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। उसका उद्देश्य कोई आपराधिक काम करना था, लेकिन उसके अंजाम देने से पहले ही पुलिस ने जाल में फांस लिया। कुख्यात अपराधी सूर्या राय, गिरफ्तार युवक एनजेपी संलग्न शांतिपाड़ा का निवासी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार सूर्या राय एनजेपी थाना संलग्न मोड़ बाजार इलाके में एक देसी पिस्तौल लेकर किसी असामाजिक इरादे से घूम रहा था। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापा मारा और अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस सूत्रों से अभी जानकारी मिली है कि वह युवक कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसके खिलाफ सिलीगुड़ी सहित विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज हैं।